नाउ जैसे लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हमारे पास यदि सपोज ये मेरा रेफरेंस एक्सिस है जिससे बैठ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो दिस इज अवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, this is our frame from which we observe the motion. Suppose we have this particle, this is a particle, this is a particle, this is a particle. There's a lot of particle, okay, n number of particle, and I consider this whole as a system. Okay, so this is our system, and I tell you that पूरे सिस्टम का मास जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लाई करेगा. ठीक है, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कहेंगे. और इसका जो पोजीशन था हम लोग उसे RCM वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे. RCM वेक्टर, this represents the position of center of mass. So the position of center of mass RCM, that is equal to, हमने निकाला था फॉर्मूला M1 R1 plus M2 R2 dash Mn Rn upon में total mass of the system M1 plus M2 dash Mn. Correct? Yes. Now see, अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, let's try to understand. If we differentiate both side, so what we get? dRCM by dt, that is equal to, because dm1 dr1 by dt plus m2 dr2 by dt dash mn drn by dt upon में total mass m1 plus m2 dash mn. Correct. Now what is the dr by dt meaning? क्या होता है dr by dt का मतलब? Rate of change of position is called what? Position. Velocity. That is called velocity. Rate of change of position vector is called Position. velocity. Yes, because Velocity. in a very small time we have very small displacement dr. Space. Yes, so we can say this is the, because you can say this is the rate of change of position vector, rate of change of position vector of center of mass, So we get what if you differentiate this? So you get velocity of center of mass. Okay, so you can see in this system there is a many particles. In this system there will be many particles. Everyone have some velocity. v1, let's suppose ये दूसरा particles की velocity v2 है. Every particle have some velocity v3. Okay, so every particle position will change. Every particle position will change, and suppose the particle 1 is change its position, so we get the velocity of first particle. So every particle in a motion, so if every particle in a motion, so the position of center mass also in a motion, so it have some also velocity. So we can say that velocity of center of mass of this system, that is equal to m1 v1 plus m2 v2 dash mn vn upon m1 plus m2 total mass of the system. Okay, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? इजी, No, बहुत sir. No, sir. मतलब अगर हम समझे कि इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो सभी के सभी क्या है, मोशन में है. तो इसका मतलब क्या है, इसका जो पोजीशन सेंटर ऑफ मास भी होगा वो भी किस में होगा, मोशन में होगा, रेस्ट में तो होगा नहीं. ठीक है, मोशन में होगा. मोशन में होगा. यस, एग्जैक्टली. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यदि मैं दोनों तरफ फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, दोनों तरफ फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, तो वी गेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी.
velocity. Yes. So m1 d1 by dt plus m2 dv2 by dt and dash the dash mn dvn by dt upon total mass of the system, that is m1 plus m2 dash mn. So what is the tell me what is the rate of change of velocity? Rate of change of velocity is what? Acceleration. Acceleration. That is acceleration. Yes, Acceleration. yes, that is the acceleration. So acceleration of the center of mass is equal to, you can say, m1, and this is the rate of change of velocity of first particle. So we get the acceleration of first particle plus m2 acceleration of second particle dash mn acceleration of nth particle divided by total mass of the system. Okay, m1 plus m2 plus dash mn. Okay, is there any problem? Yes, sir. Yes. No, No, So sir. sir. yeah, so we, if we say that the position of center of mass will change, so it have some velocity, means there will be some velocity of this center of mass of the system, and if the velocity of center of mass will change, so there is an acceleration of center of mass. So there should be velocity and acceleration of each particle, then we get the acceleration and velocity of the particles. Okay, now Yes, sir. yes, now tell me, this is the m1 plus m2. See, m1 plus m2 dash mn. You get what? This is the total. This is the total mass of the system. You can see, if there is a n particle into that Mm. system, so the total mass of the system become what? m1 plus m2 plus mn. So this is what? M2 plus Yes. Mn. Yes. This is total mass of the system. 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 So I write this thing as a capital M. Okay, as a capital M. The capital M represent total mass of the system. So if you say this is the capital M, तो अगर मैं इससे इसको इस तरफ लेकर के जाऊं तो क्या आ जाएगा? Acceleration of center of mass into total mass of the system. This is the acceleration of center of mass into total mass of the system. That is equal to what? Mass of first particle, acceleration of first particle, plus mass of second particle, acceleration of second particle. That dash mass of nth particle, acceleration of nth particle. Correct? Is it fine? Yes, sir. Now, Yes, sir. अब अगर हम इस तरह से समझे तो हो क्या रहा है कि हमारा मेन सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या था कि हम क्या चाहते हैं, ये जो भी एन नंबर ऑफ पार्टिकल था इसके अंदर, वो सिंपल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए? सिंगल पार्टिकल के अंदर। सिंगल पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये जितना भी एन नंबर ऑफ पार्टिकल होगा वो सिंगल पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम ये कहें इस सिंगल पार्टिकल यानी इस पूरे सिस्टम का मास यहाँ पे है और इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है कुछ, इस सेंटर ऑफ मास का कुछ एक्सेलरेशन है, दैट इज ACM। Acceleration है। हाँ, और इसका मास कितना हो गया? कैपिटल M। तो आप मुझे बताओ, अगर किसी भी पार्टिकल का मास टोटल मास m है और इसका एक्सेलरेशन ACM है, इसका मतलब क्या होगा? इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। we have acceleration of the particles. Second law. Yes, we have a particle. देखिए मैंने क्या किया, सारा n नंबर ऑफ पार्टिकल को एक सिंगल पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो मैं क्या कहूंगा, इस वाले पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा। सो दैट इज व्हाट? फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, so we can say force or acting on the Yes. center of mass, that is equal to mass of the system into acceleration of the center of mass. Now what is the meaning of m1 and a1? m1 means what? We applying this is also force, but this force is So, acting on the two particle terms. 1,
particle 1. This is the force acting on particle 2. This is the force acting on a particle, nth particle. Okay, so we can say force acting, total force acting over the center of mass is equal to what? Force acting on first particle plus force acting on second particle, dash force acting on the nth particle. But that all forces are external forces, not internal forces. I tell you in a कौन से ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं. मैंने सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ाया था कि फोर्स, व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ? दैट इज व्हाट, कि अगर कोई भी सिस्टम है उसके ऊपर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है. तो उस एक्सटर्नल फोर्स के वजह से क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा. इंटरनल फोर्स की बात नहीं कर रहा था वहां पर एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा था. ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कोई भी सिस्टम है उसके ऊपर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उनके ऊपर ये फोर्सेस लग रहे हैं, इतने एक्सटर्नल फोर्सेस, F1 प्लस F2 प्लस Fn, ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं. तो इन सब का फोर्स सम करोगे, यू गेट नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास. बात आ रहा समझ में? मैंने क्या कहा कि इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, या समझो सिंपल सी बात है, n नंबर और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. ठीक है, यानी अगर मैं कहता हूं सपोज आपके पास एक रिजिड बॉडी होता, सपोज रिजिड बॉडी होता, तो अब अगर मैं कहता हूं n नंबर, सपोज पहले यहां पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, हर एक पार्टिकल्स के ऊपर क्या लग रहा है? एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. जैसे मान लो इस पे F1 लगा, इस पे F2 लगा, इस पे लगा Fn लगा, ये सारे एक्सटर्नल फोर्स है. ये इंटरनल फोर्स नहीं है, सिस्टम के अंदर नहीं लग रहा है, सिस्टम के बाहर से फोर्स लग रहा है. तो इस सभी फोर्स का सम, ये जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस सभी फोर्स का सम किसके ऊपर आ जाएगा? मैं क्या कर रहा हूं, ये सभी पार्टिकल को एक सिंगल पार्टिकल से रिप्लेस कर रहा हूं, जो कि कहां पे रखा हुआ है? सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है. तो वो जो हो जाएगा, इन सभी फोर्स का सम किसके बराबर हो जाएगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास. ओके, मींस जैसे अगर हम समझे कि अगर हमारे पास 3D टाइप का बॉडी है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा. तो मान के चलो इस पे फोर्स लगा F1 F2, सारे फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं. ये सारे फोर्सेस क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम. तो एक्सटर्नल जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं. तो ये सभी फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं. इस सभी फोर्स को क्या करेंगे? एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर देंगे. आराबास में इन सभी को सिंगल फोर्स से कैसे रिप्लेस करोगे? जब इसका वेक्टर एडिशन करोगे. क्या करोगे? वेक्टर एडिशन करोगे. आराबासन में वेक्टर एडिशन. हाँ, इन सभी का वेक्टर एडिशन sir. करोगे. सो यू गेट नेट फोर्स, you get net force, and that net force is acting on what? Acting किस जगह पे एक्ट करेगा? किस जगह पे एक्ट करेगा? जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है उसके ऊपर एक्ट करेगा. आ रहा बात में? उस that पे force, हाँ. yes, that Yes, is sir. that is the concept, that is the concept, very important. FCOM. ठीक है, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि बॉडी के ऊपर बहुत सारा, आपके पास कोई 3 डायमेंशनल शेप का, मेरा मुद्दा क्या था मुझे बताओ, मैंने क्या कहा था आपको पहले जब पढ़ाया था? तो उसमें मैंने यही बताया था शुरुआत में हम इसीलिए पढ़ रहे हैं चैप्टर, क्योंकि हर एक बॉडी का कुछ शेप होगा और साइज होगा, शेप होगा और साइज होगा. हमें क्या करना होगा? उस बॉडी को एक पॉइंट मास से रिप्लेस करना होगा. ठीक है, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं. तो ये हमारे पास बॉडी है, हम इसे क्या करना चाह रहे हैं? पॉइंट मास से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन अवेलेबल है वो पॉइंट मास के लिए है. तो मान लो ये बॉडी है, इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं. अब मैं इन सभी फोर्स को अगर सम करूंगा तो वी गेट नेट फोर्स. दैट नेट फोर्स ऑलवेज बी एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, ऑलवेज एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास. आ रहा बात में? आ रहा बात में? सम Yes, ऑफ sir. ऑल Yes, sir. एक्सटर्नल फोर्स, Yes, sir. सम ऑफ, मैं लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल external force which is resultant force, or you can say resultant of force, resultant of all external force, very important concept. All external force acting on which place? Acting on the center of mass, acting on the center of mass.
एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। आरावास में कहां पे एक्ट करेगा? सभी फोर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो जो Yes, sir. नेट फोर्स होगा, दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। ओके okay, remember this Yes, sir. all are the external force, not internal forces. We are not considering here internal forces, because by second Newton's second law we know that mass into acceleration, when we say the mass into acceleration, that is equal to external sum of all external forces. So if we have a certain kind of body which have some shape or size, and if we applying the various kind of forces on that body, so we are trying to add that. So if we add the all forces, we get net force. That net force must be passes through the center of mass. Is it fine? Is it fine? Yes, sir. Yes. So that is very, very important concept. Now, so if uh, one thing you have to note here, what? So if I'm saying that net sum of all external forces, sum of, if I'm saying that sum of all external forces, sum of all external forces, sum of all external forces, External forces. yes, is zero, means FOCM will become zero, means there will be no force acting on the center of mass. Okay, hello. Yes, sir. If I'm saying that if you are trying to Yes, add sir. all these forces and you get net zero means what? Acceleration of center mass is also zero. It's Yes, correct. Yes, sir. Acceleration of yes, center sir. mass is Hmm. also zero, means we say that a0m is equal to zero, means what? Velocity of center of mass is what? Constant. 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 Yes, velocity Constant. of center of mass is constant. Okay, is it fine? Any Hmm. problem? So when we say Yes, that sir. Yes, net sir. external, yes, net external force acting on this system, net external force acting on the system is zero, means what? That acceleration of that center of mass becomes zero. If the acceleration of center of mass becomes zero, then we said the velocity of center mass is constant. Okay, velocity of center mass is constant. Is it fine? Yes, sir. Yes. So it is Constant. very, yes, it is very important. If Fine, Yes, sir. sir. anybody, yes, if anybody, if you have a system, suppose you have a system, see, I am saying that in a system there is a lot of mass, okay, and there is a lot of particle which have some velocity, okay, and that maybe that velocity will change, that velocity will be changed, okay. Why the velocity will change? Because there will be some force acting on these all particles, okay. There will be F1, F2, Hmm. F3, okay, Fn. Force is acting on the all particle. So that's why the velocity of all particle will change. Maybe individually, if you think about the all Yes. particle, then velocity of all individual particle will change. But if you are trying to add the all forces, add the all forces, that all forces, sum of all forces comes to be zero, comes to be zero, comes to be zero. Arabas mein comes to be zero, means the Yes, sir. acceleration of the center of mass will be zero, means velocity of center of mass will be always constant. Okay, means हर एक पार्टिकल की Hmm. वेलोसिटी चेंज कर रही है सिस्टम के अंदर, एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज कर रही है, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही। कब? जब इन सभी फोर्स का सम किसके बराबर आ रहा है? जीरो के बराबर आ रहा है। आ रहा बात समझ में? So, है? हेलो, yes, sir. या वेरी इंपॉर्टेंट, सी, सर आप उसको लिख दो, Yes, sir. बढ़िया से हो जाएगा. हाँ, मे बी मैं लिख देता हूं, मे बी, मे बी, मे बी velocity, velocity of all individual particle into the system change, change, but if sum of all external force, all external force is zero, then velocity of center of mass
is constant. Okay, that does not change. So if I am saying that, Yes, if sir. हाँ, देखो, अब मैं तो पढ़ा देता हूँ, थ्योरी पढ़ा देता हूँ पार्ट, और मैं उसके बाद आपको देता हूँ मेरे डाउट्स हैं या न्यूमेरिकल्स, आपको ये असाइनमेंट देता हूँ। अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये जितना भी चीज पढ़ाया जा रहा है, देखो मैं बड़े डेप्थ में पढ़ाता हूँ चीजों को, ठीक है, एक एक चीज सही से कनेक्ट करके बताता हूँ। अगर आप नहीं करोगे क्वेश्चन वोश्चन, तो भाई देखो मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ फिर सब्जेक्ट के अंदर, फिर आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा फिजिक्स। सो इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, और काम को पेंडिंग करते जाओगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, आज हो गया, ये हो गया, आज वो हो गया, टाइम नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन क्लास में इतना फील नहीं आ रहा है, एक्सक्यूजेस निकालोगे तो नहीं होगा। ठीक है भाई, मत्था अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ऐसा पहले एक सिस्टम था, सेंटर ऑफ मास था, ठीक है, जो पहले रेस्ट में था, है ना, पहले रेस्ट में था, सेंटर ऑफ मास क्या था, रेस्ट में था। आ रहा बात में? ये मेरे पास सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स Yes. हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बट ये सभी पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, सेंटर ऑफ मास यहां पे है। अब इस सिस्टम के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगना स्टार्ट कर गया, F1 F2, ठीक है, डैश Fn फोर्सेस लग रहे हैं, बट सम ऑफ ऑल एक्शनल फोर्सेस क्या आ गया, यानी F1 प्लस F2 दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। मींस अगर इनिशियली, अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, मींस अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में था, तो फाइनली भी क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, वो चेंज उसका पोजीशन Rest में चेंज, रहेगा. हाँ, उसका पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ओके, सो इफ आई एम सेइंग दैट net force acting on the system, net force acting on the system is zero. Okay, and if velocity of center of mass is zero initially, so at always the position of center of mass will not change, position of center of mass will not change. Correct? Is it fine? Hello? Yes, Yes. sir. So I think Yes, sir. I think that thing is clear. Okay, okay, that concept is clear. Yes, sir. कोई doubt? No, sir. Yes. Now I have to solve some, we have to solve some problem. सर वो लास्ट वाला नहीं लिखा सर, लास्ट वाला नहीं लिखो लिखा। लिखो लिखो। हो गया सर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है पेपर के अंदर। ठीक है, a wooden plank of mass, a wooden plank wooden plank of mass 20 kg, correct? Okay, is resting on a smooth horizontal floor, correct it? a man of mass 60 kg start moving from one end of plank to other end of plank. Okay,
The length of plank, the length of plank is 10 meter. Okay, find the displacement. Find the displacement. Displacement of the plank over the floor when man reach the other end of the plank. So try to apply whatever I teach you. Try to apply. Okay. A wooden plank of mass 20 kg resting on a smooth horizontal floor. Okay, let's start. So this is the plank. Yes, and now it resting. Resting means it is on this floor. First, draw the figure by this is the way to solve the problem. Okay, so whatever into the question you have to draw it. So there will be सर a आंसर 7.5 है क्या? 7.5. 7.5. Yes. How you calculate? Yes, बताओ कैसे किया? सर पहले मैं वो मैन और सर्टेन प्लेस के लिए एक्स ले लिया सर, फिर उसके बाद से और लास्ट तक उसको मैं 10 - x ले लिया. कॉन्सेप्ट क्या है? क्या लगा उसका आपको? पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करा. कॉन्सेप्ट क्या है? m1 r1 plus m2 r2 by m1 plus m2 net displacement of a center of mass. हाँ नेट. हाँ Displacement of a center of mass सर. नहीं कॉन्सेप्ट क्या है? कि मैंने जो यहाँ पे पढ़ाया उसका क्या आपने अप्लाई किया? क्या किया? वही सर m1 r1 plus m2 r2 by m1 plus m2 का. ओके सी देखो तो ऐसे क्या सोच रहे थे क्या आप? जैसे m1 आपने हाँ देखो. हाँ जैसे आपने m1 और a1 plus m2 a2 लिखा था ना सर, मैं ऐसे कर रहा था बस. अच्छा देखो तो ऐसे. पोजीशन. हाँ हाँ उसका पोजीशन फाइंड करा. देखो तो मैं सही कर रहा हूँ. मुझे चेक करना कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे चेक करना. ठीक है मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि एक प्लैंक है. आप गलत कैसे हो सर? ठीक है ये स्मूथ फ्लोर है और यहाँ पर उसने बोला एक आदमी है प्रथम है यहाँ पे. येरा प्रथम है. प्रथम येरा जिसका अरे मेरा नाम नको सर अभी. अच्छा अभी पब्लिक में है अपन. अच्छा इसका मास कितना हो गया 20 kg. ठीक है और ये जो मैन है ना, चलो ये राजकुमार सर है जिसका है मास 60 kg. करेक्ट. हाँ राजकुमार सर है, सही है. हाँ तो अब ये Yes, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक एंड पे है ये प्लैंक है ना. मैन यहाँ पे है इस एंड पे. अब ये यहाँ से दूसरे एंड पे जाना चाहता है. ठीक है ये यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा. ठीक है तो ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस्ड होगा ये हमें पता करना है. ठीक है यानी यहाँ पे देखो दो चीजें इन्वॉल्व है. यहाँ पे देखो दो चीजें इन्वॉल्व है. मैन भी है और प्लैंक भी है. मैन भी है और प्लैंक भी है. प्लैंक भी दो भी. यस both are involving. Initially this plank is in rest and this man is also in rest. So if we consider both man and plank as a system, so the position, whatever the position of center of mass, whatever the position, कहीं पे भी जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो किस में होगा? रेस्ट में ही होगा. आ रहा बात समझ? क्योंकि इसमें ये ब्लॉक रेस्ट में ही होगा. रेस्ट में था और ये भी इनिशियली रेस्ट में है. तो कहीं पे भी अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लेता हूं, देखो सिस्टम के अंदर दो चीजें है ना. दो चीजें मान ली मैंने, ये प्लैंक भी मान लिया और इस मास को भी मान लिया. तो सिस्टम क्या होगा? सिस्टम का जहां पे भी सेंटर ऑफ मास होगा, जहां पे भी, व्हाटएवर द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दैट पोजीशन
that the position that center of mass is in a rest, because the individual particle also in a rest. Okay, now think if we consider this is the system, if we consider this is the system, this is the system, okay, so there will be no external force. You can see in this direction, in vertical direction, there will be a gravitational force acting on this mn and this Planck. So there will, here earth is external, okay, earth is external, and I am considering this man and Planck as a system. So earth applying the force on this system is external, but it acting in which direction? It acting vertically downward direction, in a vertical downward direction, okay. But in the horizontal direction, you can see in a horizontal direction there will be no force, because this is a smooth surface. You can see this is a smooth surface, so there is no friction actually. So in the horizontal direction, there will be no external force acting on the system. Means all external force, sum of all external force, acting on this system, that is zero. That is zero Zero. along the x-axis, not along the y-axis, because Earth is external. Along the x-axis, means velocity of the center of mass along the x-axis. Whatever the velocity of the center of mass along the x-axis, that is constant. Means what? If you can see this man and Planck, if we consider both as a system, so both will not the position of the center of mass is in a rest initially, okay. So initially center of mass at a rest. So finally whatever the situation, मैंने अभी बताया था कि अंदर सिस्टम के अंदर कुछ भी हो रहा होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है, बट हम सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो पहले क्या था? रेस्ट में है, तो अभी भी क्या होगा? रेस्ट में ही रहना चाहिए, यानी उसी लोकेशन पे रहना चाहिए जिस लोकेशन पे पहले था। बात समझ में आया? हेलो, हाँ मैंने कहा along Sir. x axis, along Yes, sir. समझ along गया। x axis इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, तो फाइनली भी रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में होने का मतलब क्या है कि कोई चीज रेस्ट में क्या होता, कब होता है? हाँ जब उसका पोजीशन टाइम के साथ ना चेंज करे। तो सेंटर ऑफ मास का जो भी पोजीशन होगा पहले, हाँ क्या होगा? फाइनल पोजीशन होगा। आया समझ में? हेलो कनिष्का, समझ में आया आपको? आवाज आ रही है? हाँ Sir. ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा? कॉन्सेप्ट यही है कि सेंटर ऑफ मास पोजीशन नॉट चेंज along x-axis, you have to think like that, okay? इस तरह से ना। अब हम करेंगे सवाल को सॉल्व। तो ये मैंने कहा पहले हमें निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन क्या था, ठीक है। तो देखो मान लो इसका, इसने कोई मानने के हम दे रखा है इसने कि इसका जो लेंथ है प्लैंक का, इस पूरे लेंथ जो है प्लैंक का वो 10 मीटर है, ठीक है, ये 10 मीटर है। तो मान लेते हैं ये मेरा y एक्सिस हो गया और मेरा ये x एक्सिस हो गया। तो चूंकि यू कैन से द सेंटर ऑफ मास ऑफ हाँ दिस मैन is here right now, okay, on this y axis. So initially x1 for the position of center of mass of this particle, that is 0, और इस प्लैंक का जो सेंटर ऑफ मास होगा, देयर विल बी समवेयर हियर, यहां पे कहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास प्लैंक का। आ रहा बस में? हाँ दिस इज योर बीच में C2, हाँ this is C1, this मैं is भी C2, वैसे ही करे। this is C2. So that is what at which location from this axis कितने डिस्टेंस पे होगा? क्योंकि ये 10 मीटर है तो 5 मीटर पे, कहां पे होगा? 5 मीटर पे होगा। So this is the 5 meter, 5 मीटर 5 meter, okay, so this is a 5 meter, so 5 meter, so we can say the x2 that is equal to 5 meter, okay. So the center of mass of this both system xcm, that is equal to what? m1 x1 plus m2 x2 upon
m1 plus m2. Got it? Hello? यस सर। करेक्ट है? समझ में आया बात? या आप दोनों को समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ, आपने तुम तो एक्स एक्सिस के लिए ना सर, आपने तुम अलोंग द एक्स एक्सिस का। हाँ हाँ। हेलो कनिष्का, करिश्मा? हाँ हेलो? Yes, sir. हाँ। कनिष्का का आवाज नहीं आ रहा। Yes, sir. कनिष्का माइक ही नहीं काम कर रहा। सर उसको आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? हेलो? नहीं, कट कट के जा रही है। कट कट के जा रही है उसके पास। ओके, उसका आवाज आ ही नहीं रहा। अच्छा, तो ये नेटवर्क इशू होगा है। कोई नहीं, मैं रिकॉर्ड Yes, कर sir. लिया हूँ लेक्चर, मैं अपलोड कर दूंगा कल तक। मैं ना कल इसको अपलोड करूंगा सारे लेक्चर्स को। टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो अपलोड कर दिया होता। ठीक है, सो नाउ 10 मीटर हो गया, ये 60 ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते पहले। तो m1 कितना है तुम्हारा यहाँ पे, दैट इज 60, और x1 क्या है आपका 0, प्लस m2 कितना है 5, सॉरी 20, डिस्टेंस x2 कितना है 5, डिवाइड बाय 60 प्लस 5, सो दिस इज इक्वल टू 5 दूनी 10 यानी 100 बाय 65 मीटर. Okay, so that is the position of center of mass. That is the position of center of mass somewhere here. Okay, somewhere here. So that will not change. That will not change. I just redraw actually. Redraw. Yes. So let's suppose that this is the position of center of mass. So that is at a distance what? At a distance 100 by 65 meter. Correct? 100 by 65 meter. Yes. So now what happened? This man are traveling from this location to this location. Okay. क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस एंड से इस एंड पे जाएगा। तो थिंक, अब आप सोचो, आपने अभी हम लोगों ने देखा था कि यदि आदमी चलेगा, हम देखेंगे कि आदमी ऐसे करके इधर जा रहा है, तो आदमी के ऊपर फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ। वो कौन लगा रहा होगा? प्लैंक लगा रहा होगा। प्लैंक लगा रहा होगा, हाँ, जिसे फ्रिक्शन फोर्स प्लैंक लगा रहा है, यस है ना, फ्रिक्शन फोर्स है ना। और प्लैंक के ऊपर फोर्स किधर की तरफ लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा, है ना, तभी तो ये पीछे आएगा। देखो क्या है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर के इस आदमी को देखूं, ग्राउंड पे खड़ा होकर के इस आदमी को देख रहा हूं, तो आदमी क्या कर रहा है? इस एंड से इस एंड पे जा रहा है, तो कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा इसको यहाँ से यहाँ पहुंचाने में। और जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन हो सकता है? फ्रिक्शन। कौन लगा सकता है? ये प्लैंक लगा सकता है इस मैन के ऊपर। इसका मतलब मैन जो है प्लैंक के ऊपर लगाएगा फोर्स, किधर की तरफ? पीछे की तरफ। आया बात समझ में? हेलो हेलो? हाँ, जी। तो इसका Yes, मतलब sir. यस, तो इसके वजह से Yes, sir. मैंने बताया था ना एक चीज कि फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, इज सपोर्ट द मोशन। ओके, इफ आई एम से, अगर हम यहाँ पे देखें, मैन लग रहा है मुझको इधर से इधर जा रहा Yes, है, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, और वो सिर्फ प्लैंक लगा सकता है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका मतलब इस प्लैंक के ऊपर भी फोर्स लगेगा, दैट इज आल्सो फ्रिक्शन फोर्स, एंड दैट इज एक्टिंग in backward direction. So because of this force, friction force, plank will move in backward direction, like somewhere here. Okay, somewhere here. Okay, now, and the man will reach here. Man will reach here. मेन मुद्दा क्या है? कॉन्सेप्ट समझाना। देखो क्वेश्चन आसान सा है, 2 मिनट में हो जाएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट सच दैट यू कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम। नाउ मैन यहां पे पहुंच गया, प्लैंक इधर चला गया। ठीक है, ये प्लैंक इधर गया क्यों? बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स। ओके, नाउ दिस इज द योर ग्राउंड। अब प्लैंक कितना इधर गया हम थोड़ी जानते हैं, कितना इधर गया, यहां से कितना इधर गया हम नहीं जानते, तो मान लेते हैं कितना डिस्टेंस इधर से इतना गया, नहीं, मान लेते हैं x डिस्टेंस गया, मान लेते हैं पीछे की तरफ कितना डिस्टेंस गया, x डिस्टेंस गया। ठीक है,
तो अब ये जो डिस्टेंस बच जाएगा वो कितना हाँ। बच जाएगा, दैट इज टोटल 10 था, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, करेक्ट, 10 माइनस एक्स। यानी जो मैन पहुंच गया वो यहां पहुंच गया, C1 एक्ट हेयर, C1 इज हेयर। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नो सर। Yes, correct. So now, but you can see the position of this center of mass of both system will always be here. That does not change because the net force acting on this system, net external force acting on this system is 0. तो पहले जितना कितने डिस्टेंस पे था यहां से 100 बाय 65 पे, तो बाद में भी कहां पे रहेगा 100 बाय 65 पे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। सर। अब हम क्या करते हैं फाइनली, नो सर। हाँ, इस फिगर के लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं कि कहां पे होगा। तो देखो मैन पहुंच गया यहां पे, तो यानी कि अब x1 कितना हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा x1, अब जो x1 हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, x1 हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 माइनस में 10 माइनस में x, ठीक है, ये x1 हो जाएगा। अच्छा, अब इसका मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना था यहां से यहां तक, 10 मीटर है ना, यहां से यहां तक 10 मीटर है, ठीक है। यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा, यहां से इस एंड से 5 मीटर पे, करेक्ट है, यहां पे होगा आपका 5 मीटर पे, यहां से 5 मीटर पे। अब ये यहां से डिस्टेंस कितना हो गया x, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा अब यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा 5 माइनस एक्स पे ऊपर, करेक्ट है, हेलो, यस सर। ये होगा आपका 5 माइनस एक्स के ऊपर। यस सर। ये C2 मतलब जो C2 होगा, C2 जो होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा 5 माइनस एक्स के ऊपर होगा, करेक्ट। एनी प्रॉब्लम, करेक्ट। नाउ what is the position of center of mass, xcm, that is equal to m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. now this will not change, ये पहले कितना था 100 by 65, so again this will be 100 by 65, m1 that is what, that is equal to 60 kg. You can see the position of center of mass of the man will change but the whole system will not change. so अब वो center of mass जो man का है वो कितने distance पे है 10 minus x के ऊपर है। m2 कितना है आपका, that is 20 kg, but इसका center of mass अब कितने distance पे हो गया यहां से 5 minus x के ऊपर, divide by 5। yes, divide by total mass, that is 65, correct. so you can say 65 से 65 cancel हो गया, यस सर। 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा 600 माइनस में 60x और प्लस में 500 माइनस में 20x, सो दैट इज व्हाट 80x, 80x। तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो दिस इज 600, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो तो कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 30 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 15, 25 by 2। 15 by 2, 7.5 मीटर। ओके, मींस प्लैंक जो होगा वो यहां से कितने डिस्टेंस पीछे जाएगा 7.5 मीटर जाएगा। आ रहा बात में? हेलो, यस, सो that is the main concept what I am teaching today. I am saying that if the net force acting on the system is 0, so if a position, if the center of mass initially in rest, so it always in rest, that does not, the position of center of mass will not change, that does not change until or unless we apply any external force on this system. Okay, is there any problem? Hello? No sir. Yes. So I'm just, yes, I'm giving a one more problem as a homework. Please solve it. Okay, please solve it. Yes, I will tell you na. If you don't able to solve, then I will explain. Yesterday also I'm giving some problem. सिर्फ एक yesterday क्या दिया था क्वेश्चन, मैंने भूल गया मैं. Yeah. कोड वाला. Yes. Yes.
Only one person will solve this question. It's a very simple question, but nobody will try. कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, जो सॉल्व करेगा मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा, मुझे एफर्ट चाहिए, ठीक है? वट एवर यू सॉल्व यू हैव टू। सर मैं कल मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। हाँ देखो मैं कल तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैं नहीं सॉल्व करूंगा, पहले देखना है, मुझे देखना है कि कौन कौन सॉल्व कर रहा है, ठीक है? सो दिस इज द सपोज, यस, so this is the a plank. Okay, this is a plank, and resting on this smooth surface, the smooth surface, and on this plank there will be a mass at the top. Here is a mass. Okay, here is a mass, and the total mass of this plank is capital M, and the small mass of this system is small m. Okay, now if I'm saying that the height of this plank is h, and this is the theta is the angle of inclination of the plank, you have to tell me when this block will reach the bottom of this plank of the wedge, so what is the displacement of the wedge in backward direction? So the question is find the displacement of wedge on the horizontal surface when block reach the bottom of the wedge. Okay, this is the one problem you have to solve. Another problem is what there is a one ball. Okay, I'm just saying that this is a one ball. There's a one ball of total mass 100 kg. Correct? I am just trying to project this mass. Okay, I'm trying to project this mass at an angle. 1 minute. Yes. So this is the I am going to project at an angle 53 degree. Okay. So when this mass, okay, when this particle reach at highest point, it explode into two part. Okay, it explode into two part. One part will drop here. Okay, and find the position of the other part. It explode into two part. Okay, it explode into two part. One mass is 40 kg and another mass is 60 kg. Okay, so one particle drop here, explosion यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पर जाकर के एक पार्ट गिर जाता है, एक पार्ट यहाँ पे जाकर गिरेगा, तो हमें ये बताना है कि दूसरा पार्ट कहाँ पे जाके गिर रहा है. You have to tell me this position where the second part will fall. ठीक है, जैसे हमने एक जैसे कि वो तोप वगैरह नहीं होता, गोली वोली चला देते हैं, तोप वगैरह है ना, वो ऊपर जाकर के एक्सप्लोड हो गया, बॉम्ब जो है एक्सप्लोड हो गया, और एक बॉम्ब
उसका एक पार्ट आकर के यहाँ गिरा, एक पार्ट वहां जाके गिरा, ये कहाँ पे दूसरा पार्ट गिर रहा है ये हमें बताना है। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम? हेलो हेलो। नो सर। So No this is problem, sir.